Hello everyone. We are discussing the important topics under Geography Prelim series. Under this series, we have already discussed the important areas in geomorphology, and now we have started with climatology. Under climatology, also, we have already discussed two topics. One is the structure of the atmosphere, and second is the heating of the atmosphere. Now, this is another topic called temperature distribution on the Earth's surface. And the reason this topic I have picked up because this topic has been asked in the prelims 2024. So since we are taking up all the questions related to geography that have been asked in the past 5 years, so this is another question from those 5 years. So let's see the question first. So this is the question. The question is about the isothermal lines. Let's see the question. Which of the following is or are correct? Inference from the isothermal maps in the month of January. So basically the question is about the isothermal lines. You need to know the fact that horizontal distribution of temperature is represented on the globe with the help of isothermal lines. So we'll see each and everything in detail with respect to the temperature distribution, and then we'll come to this question. So let's start the discussion. So today's topic is temperature distribution on Earth. Temperature distribution across globe. So this is the topic that we are discussing. So under this topic, I'll take up two broad areas. One is the factors responsible for variation in the temperature across the globe, and second, the distribution of temperature. So we'll see the vertical as well as the horizontal distribution of temperature across the globe. So just to get an idea what exactly the term temperature is. So if we talk about temperature, so temperature is the measurement of degree of hotness or coldness of a body. So basically, temperature is the measurement of amount of heat present in a body. हीट की वजह से टेम्परेचर किसी बॉडी में पाया जाएगा, तो उस हीट का मेजरमेंट इज द पैरामीटर कॉल्ड टेम्परेचर. अपने को पता है कि अगर हम अर्थ सरफेस की बात करें, एज अ जोग्राफर आवर फोकस इज टू स्टडी द इवेंट्स, फिनोमिना, वेरिएशंस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो अगर टेम्परेचर को देखिए, हम लोग टेम्परेचर को एनालाइज करें, तो टेम्परेचर ऑल्सो वेरीज ऑन द अर्थ सरफेस across the space, मतलब from place to place, as well as across the time. So there is variation in the temperature across the space as well as across time. For example, जैसे आप अगर इक्वेटोरियल रीजन में रहते हैं, अगर आप ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं, तो टेम्परेचर रिलेटिवली ज़्यादा होगा
compared to the temperature in the polar areas. तो प्लेस के हिसाब से, रीजन के हिसाब से देयर इज वेरिएशन इन द टेम्परेचर. या फॉर दैट मैटर अगर आप दिल्ली में रहते हैं और जो लोग मुंबई में रहते हैं तो देयर विल बी वेरिएशन इन द टेम्परेचर. तो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस देयर इज वेरिएशन इन द टेम्परेचर. तो दैट इज कॉल्ड स्पेशियल वेरिएशन. एंड अगर टाइम के अक्रॉस देखें तो दिल्ली की अगर लेट्स से हम बात करते हैं तो दिल्ली में समर में टेम्परेचर वुड बी a little bit higher compared to the temperature in the winter. तो टाइम चेंज हुआ, सीजन चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज हो गया ऑफ द सेम प्लेस. तो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि टेम्परेचर वेरीज अक्रॉस द ग्लोब स्पेशली एज वेल एज टेम्पोरली. टाइम के हिसाब से और स्पेस के हिसाब से या रीजन के हिसाब से टेम्परेचर में वेरिएशन होगा. तो let's see the factors responsible for this variation. Responsible for variation in the temperature. ये variation क्यों दिख रहा है? Let's analyze those factors. So this is a potential area for the prelims as well as mains examination. Already the topic that we are going to discuss over here, already a question has been asked from here. I'll show that question later on. So anyway, so when we talk about the factors responsible for variation in the temperature, the first factor is called latitude. एग्जाम्पल लेते हैं इसका और फिर इसकी थ्योरी को समझेंगे. लैटिट्यूड के अक्रॉस जैसे जैसे आप मूव करोगे तो टेम्परेचर में वेरिएशन है. जैसे मैंने अभी बोला कि ट्रॉपिकल रीजन में टेम्परेचर ज़्यादा है और पोलर रीजन में टेम्परेचर कम है. तो मतलब क्या हुआ? ट्रॉपिकल रीजन का लैटिट्यूड समर अराउंड 0 डिग्री सेल्सियस या 0 to roughly 23.5 डिग्री सेल्सियस नॉर्थ एंड साउथ बोथ. एंड पोलर रीजन में लैटिट्यूड 80-90 के क्लोज है. तो लैटिट्यूड्स के क्रॉस टेम्परेचर में वेरिएशन है. तो फर्स्ट फैक्टर कि आप किस लैटिट्यूड पे प्रेजेंट हो. अगर आप नियर द इक्वेटर हो तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा और अगर आप पोल्स के क्लोजर हो तो टेम्परेचर कम होगा. तो एग्जाम्पल अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ट्रॉपिकल रीजन हैव हाई टेम्परेचर compared to that of polar region. So it means that in general can I say that there is variation in the temperature across latitudes. Let's see why this variation is happening. Why temperature declines in general when we move towards poles from the equator. इक्वेटर पे टेम्परेचर ज़्यादा है और जैसे जैसे आप पोल की तरफ बढ़ोगे टेम्परेचर स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग इन जनरल. तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो लेट्स एनालाइज दिस फैक्ट. लेट्स से दिस इज आवर अर्थ एंड दिस लाइन रिप्रेजेंट्स द इक्वेटर. मैं 0 डिग्री से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. लेट्स से दिस लाइन रिप्रेजेंट्स, दीज टू लाइन्स रिप्रेजेंट ट्रॉपिक्स, Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. So we know that the apparent movement of the sun happens between the tropics. So sun keeps on moving between these two tropics. Or in other words,
sun does not go beyond the tropics at any point of time throughout the year. पूरे साल भर सन का जो मूवमेंट है, मैं सनरेज की बात नहीं कर रहा, I'm talking about सन, तो सन का जो मूवमेंट है दैट डज नॉट हैपन बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स, और इसीलिए उसको ट्रॉपिक्स बोलते भी हैं. मैं डिस्कस करूंगा जब भी मैं कभी लैटिट्यूड्स का डिस्कशन करूंगा कि ट्रॉपिक टर्म कैसे दिया गया, क्या चीजें हो रही. बट वन फैक्ट वी नो कि सन डज नॉट मूव बियॉन्ड दीज टू ट्रॉपिक्स. तो इसका मतलब ये है कि इन दो ट्रॉपिक्स, मान लेते हैं ये ट्रॉपिकल रीजन है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो सन इन्हीं दोनों के बीच में मूव कर रहा है. तो मतलब ये है कि सनरेज आर मोस्टली वर्टिकल इन द ट्रॉपिकल रीजन थ्रू आउट द ईयर. और सनरेज जब वर्टिकल होंगी, जैसे ये सनरेज गिर रही है, वर्टिकल गिरेगी तो ये कम एरिया पर गिरेगी. जब कोई रेज वर्टिकल गिरेगी तो एरिया कम ऑक्यूपाई करेगी, तो उस एरिया की इंटेंस हीटिंग होगी. सो हो क्या रहा है, इन लेट्स से इक्वेटोरियल रीजन, और ब्रॉडली अगर मैं बोलूं ट्रॉपिकल रीजन, सनरेज कैसी है, वर्टिकल है. वर्टिकल क्यों है, क्योंकि सन इज मूविंग इन बिटवीन दीज टू ट्रॉपिक्स. तो सन रेज आर वर्टिकल. इससे क्या होगा, इस एरिया की इंटेंस हीटिंग होगी. इंटेंस हीटिंग क्यों होगी, क्योंकि पर यूनिट एरिया जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि एरिया कम है, क्योंकि रेज वर्टिकली गिर रही हैं. इसी के ऑपोजिट, लेट्स से इन द पोलर एरियाज या बियॉन्ड ट्रॉपिक्स, जब सन यहाँ पे है तो वर्टिकली, लेकिन सर सनरेज ट्रॉपिक्स के बियॉन्ड थोड़ी सी स्लैंटेड होंगी, वर्टिकल होने की बजाय थोड़ी सी टिल्टेड होंगी. तो ड्यू टू टिल्टेड सनरेज, टिल्टेड और स्लैंटेड सनरेज, जब सनरेज ऐसे टिल्ट होके पड़ेंगी तो ये ज्यादा एरिया कवर करेंगी. तो वही सेम सनरेज ज्यादा एरिया कवर कर रही हैं, तो पर यूनिट एरिया एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा एरिया ही कवर कर रही हैं. तो इट विल एक्सपीरियंस डिफ्यूज्ड हीटिंग. इस एरिया में बहुत ज्यादा हीटिंग नहीं होगी जैसे ट्रॉपिकल या इक्वेटोरियल रीजन में हो रहा था. तो जब डिफ्यूज हीटिंग होगी तो टेम्परेचर वहां कम होगा. सो दैट इज व्हाट आई सेड कि as we move away from the equator towards the poles, there would be general decline in the temperature. So latitude is one dominant factor determining the variation in the temperature across the globe, that we have already seen कि latitude कैसे कर रहा है. तो it is basically एंगल ऑफ इंसिडेंस वेरी कर रहा है. जो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ सनरेज है दैट इज वेरिंग फ्रॉम इक्वेटर टू दी पोल्स, और उस वेरिएशन की वजह से हीटिंग डिफरेंट हो रही है और देयर बाय टेम्परेचर में वेरिएशन है. तो फर्स्ट इज लैटिट्यूड्स. लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड फैक्टर. सेकंड फैक्टर इज ऑल्टीट्यूड. पहला लैटिट्यूड, सेकंड ऑल्टीट्यूड. मैंने जब कल के वीडियो में अगर आप देखेंगे, जब हमने लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की बात की थी, तो मैंने बोला था फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस विल कंसिडर ट्रोपोस्फेयर टू बी द एटमॉस्फेयर. मैंने रीजन एक्सप्लेन किया था वहां पर. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा. बट फॉर नाउ यू शुड नो कि एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे आप अर्थ सरफेस से ऊपर उठेंगे देयर इज जनरल डिक्लाइन इन द टेम्परेचर, जिसको हमने नॉर्मल लैप्स रेट बोला था. मैंने वहां पर एक कॉन्सेप्ट और एक्सप्लेन किया है, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट का. तो यहां के लिए we know that with increase in the height from the surface of earth, temperature declines.
तो फिर से टेम्परेचर में वेरिएशन हुआ। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा, माउंटेनस रीजन्स, mountainous region experiences lower temperature। आप सेम लैटिट्यूड पे रहिए सर, बट अगर आप माउंटेन पे चले जाएंगे तो आपको टेम्परेचर कम मिलेगा, ऊपर जा रहे हैं क्योंकि आप। सो ऑल्टीट्यूड और कॉल इट हाइट। तो दिस इज सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर। थर्ड, revolution of earth around sun, क्योंकि sun is the primary source of energy, and the tilt of and the tilt of earth on its axis। अपने को पता है कि अर्थ बिल्कुल एक्सिस जो अर्थ की है वो स्ट्रेट नहीं है, वो थोड़ी सी टिल्टेड है। वर्टिकल से वो 23.5 डिग्री टिल्ट है उसमें, तो ये एक्सिस बना रहा है। तो ड्यू टू दिस टिल्ट along with the rotation there is variation in the temperature across the season। देखते हैं क्या हो रहा है। Let's suppose this is our sun, जहां से अर्थ को हीट मिल रही है इंसुलेशन के थ्रू। मान लेते हैं कि दिस इज द अर्थ विच इज टिल्टेड, ये एक्सिस है टिल्टेड, इस वर्टिकल एक्सिस से 23.5 बनाएगा। ये जो लाइन है दिस इज इक्वेटर, दिस लाइन इज लेट्स से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड दिस लाइन इज लेट्स से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो सन के अक्रॉस जब रेवोल्यूशन कर रहा है अर्थ, तो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर सन के अक्रॉस दिखेगा। तो ये जो पोजीशन ली है मैंने, दिस इज ऑफ 21 जून। 22 जून को सन इज वर्टिकली ओवरहेड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर आप नदर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं तो आपको पता है कि 21 जून को इंडिया में सबसे बड़ा दिन होता है। We observe the longest day, in fact, in the entire northern hemisphere on 21st June। क्यों? क्योंकि sun is vertically overhead the tropic of Cancer। अगर आप देखेंगे भी तो सन रेज आपको यहां पर वर्टिकली ओवरहेड दिख रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। सेम टिल्ट के साथ सर ये मूव करेगा, दिस इज द सेम टिल्ट, अभी भी ऐसे है ये। तो ये है, यहाँ पे सन है, तो पहले यहाँ पे था ऐसे टिल्ट था, फिर सेम टिल्ट ऐसे आ गया। तो नाउ द इक्वेटर इज इन फ्रंट ऑफ द सन, जो डायग्राम में नहीं दिख रहा है, बट अगर आप इसको 3D इमेजिन कर पाएंगे तो आपको दिखेगा कि नाउ इक्वेटर 3 महीने बाद इक्वेटर विल बी इन फ्रंट ऑफ द सन रेज। तो अभी सन रेज कहाँ है, वर्टिकली ओवरहेड द इक्वेटर, यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नेक्स्ट, ये इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को दिखा। नेक्स्ट 3 मंथ्स में नाउ द सन रेज आर वर्टिकली ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो अब सदर्न हेमिस्फीयर में समर होगा। इस टाइम पे 21 जून के टाइम पे नदर्न हेमिस्फीयर में समर था। सिमिलरली
एक 3 महीने का और आप चक्कर लगाएंगे प्लस 3 मंथ्स, तो सन यहाँ पर कहीं होगा एंड नाउ दी फिर से इक्वेटर पर वर्टिकली ओवरहेड। जब रिवोल्यूशन अब पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में तब मैं इसमें डिफरेंट नेमिंग करूंगा, बट मैं अभी आपको नाम दे देता हूं। दिस इज कॉल्ड समर सॉल्स्टिस। समर सॉल्स्टिस कब बोलते हैं? 21 जून को, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सनरेज वर्टिकली ओवरहेड होती है। जब इक्वेटर पे सनरेज वर्टिकली ओवरहेड है तो दिस इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। 3 महीने बाद, तो लगभग ये मिलेगा आपको 20-22 सितंबर को। दिस इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। दिस इज कॉल्ड autumn equinox, or it is also named as fall equinox. Similarly, जब सनरेज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे वर्टिकली ओवरहेड है तो दिस इज अगेन अ टाइम ऑफ सॉल्स्टिस एंड दिस इज कॉल्ड विंटर सॉल्स्टिस। विंटर सॉल्स्टिस इसलिए क्योंकि जो नेमिंग की गई है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू दी समर, विद रिस्पेक्ट टू दी नदर्न हेमिस्फेयर। तो नदर्न हेमिस्फेयर में इस टाइम पे विंटर होगा, इसलिए इसको विंटर सॉल्स्टिस बोलेंगे। क्या होगा सर? 20-22 सितंबर से आप 3 मंथ और जोड़ दीजिए तो दिस वुड बी अराउंड 21 दिसंबर। आप देखिए 21 दिसंबर को नदर्न हेमिस्फेयर में लॉन्गेस्ट नाइट होती है, नाइट की लेंथ बढ़ जाएगी। सिमिलरली नेक्स्ट 3 मंथ्स, दिसंबर से 3 मंथ और, तो दिस विल बी क्लोज टू 22 मार्च। दिस इज इक्विनॉक्स। कौन सा इक्विनॉक्स है सर? इस टाइम पे स्प्रिंग सीजन है तो दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग इक्विनॉक्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड vernal equinox. These are terms from where you can expect a question. तो वर्नल इक्विनॉक्स कब हो रहा है? जब सन रेज वर्टिकली ओवरहेड है इक्वेटर पर। टाइम क्या है वो? मार्च का महीना है। जब सन रेज वर्टिकली ओवरहेड होंगी इक्वेटर पर तो सन रेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी हर डायरेक्शन में। यस, तो the entire globe will experience equal length of day and night. जब सन रेज कैंसर पर वर्टिकली ओवरहेड होंगी तो सनरेज ज्यादा नदर्न हेमिस्फेयर में होंगी, तो जो डे का लेंथ होगा इन द नदर्न हेमिस्फेयर दैट वुड बी मोर देन 12 आवर्स। Yes or no? But this topic will take up in detail when we'll talk about the revolution of Earth. Already a question has been asked related to revolution of Earth. The point I'm trying to make here is कि with this revolution of the Earth, जैसे जैसे Earth is revolving around the Sun, the different zones of the Earth are receiving the vertical sun rays. और जहां पे वर्टिकल सन रेज होंगी वहां पे हीटिंग ज्यादा होगी तो वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, और जहां पे सन रेज स्लैंटेड या टिल्टेड होंगी फिर से वहां पे डिफ्यूज हीटिंग होगी। सो दिस रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ around the sun and its tilt on its axis is responsible for seasonal variation in the temperature. सीजन के हिसाब से वेरिएशन होगा, और आई कैन से इट इज द रीजन फॉर सीजनैलिटी across the globe. Make sense? Come to fourth factor. Fourth factor, we can, if we have talked about revolution, we can say rotation of the earth. Again, rotation, revolution, I'll take up in detail. That itself is a topic, big topic to discuss a lot of things. So for now हम temperature variation के respect में देखेंगे। तो अपने को पता है कि Earth is rotating on its axis from west to east.
अर्थ का जो रोटेशन का डायरेक्शन है एक्सिस पे, दैट इज वेस्ट टू ईस्ट। तो मान लेते हैं यहाँ पे सन है, तो द पार्ट विच इज इन फ्रंट ऑफ द सन रेज, वहां पे डे होगा। जैसे ये पार्ट एक्सपोज्ड है तो दिस विल एक्सपीरियंस डे। जो पार्ट पीछे के साइड में है वहां पे सनलाइट नहीं पहुंच रही है तो दैट विल एक्सपीरियंस नाइट। अपने को पता है नाइट में टेम्परेचर कम होता है और दिन में टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो टाइम के हिसाब से वेरिएशन हुआ, तो वेरिएशन इज देयर। तो कैन आई से कि रोटेशन ऑफ अर्थ is responsible for diurnal change in the temperature। दिन और रात में जो टेम्परेचर वेरिएशन है दैट इज बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। हम लोग अभी टेम्परेचर के वेरिएशन को देख रहे हैं, वी आर नॉट डिस्कसिंग इन डिटेल अबाउट द रोटेशन ऑफ अर्थ। हम रोटेशन से कैसे टेम्परेचर पे इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको डिस्कस कर रहे हैं। Is that okay? So rotation is responsible for diurnal change in the temperature। दिन के टाइम पे टेम्परेचर ज्यादा, रात के टाइम पे टेम्परेचर कम। ओके, नेक्स्ट फैक्टर winds। If you have heard of something called as land breeze, sea breeze या certain local winds called लू, इंडिया में लू आता है। तो जब भी लू ब्लो करेगा इंडिया में तो नदर्न इंडिया experiences heat waves। There is sudden increase in the temperature। तो टेम्परेचर पहले रिलेटिवली कम था, बट जैसे ही वो लू आई राजस्थान साइड से नदर्न इंडिया की तरफ तो देर इज इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो विंड्स का इम्पैक्ट है, ये सुनो। तो विंड्स आर रिस्पॉन्सिबल, ऐसे ही लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। लैंड ब्रीज क्या होता है मैं ब्रीफली आपको बता देता हूं। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज दोनों देख लेते हैं। नाइट टाइम को देखते हैं। लेट्स से this is some landmass and this landmass is surrounded by the water body, let's say ocean or sea। तो अपने को पता है कि टेम्परेचर ऑफ द ओशन in the night would be greater than the temperature of landmass। आप पूछोगे सर ये क्यों होगा? क्योंकि सर नाइट में सनरेज तो होंगी नहीं। यहां पे एक कॉन्सेप्ट आएगा, दिस इज दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट। आपने स्कूल डेज में पढ़ा होगा स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट। लेट मी एक्सप्लेन दैट। स्पेसिफिक हीट होती है कि एग्जाम्पल के साथ अगर मैं एक्सप्लेन करूं, लेट्स से कि हमने 1 किलोग्राम ऑफ वाटर लिया और 1 किलोग्राम ऑफ लैंड मास लिया, and I want to increase the temperature of this 1 kg land mass and 1 kg water by 1 degree Celsius। तो दोनों को क्या सेम अमाउंट ऑफ हीट लगेगा? 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 kg लैंड मास का 1 kg वाटर का क्या सेम अमाउंट ऑफ हीट लगेगा? द आंसर इज नो। वाटर को हीट करने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होगी और इस लैंडमास का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कम अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होगी। So this amount of heat which is needed
to increase the temperature by 1 degree Celsius of 1 unit of a substance is called specific heat. तो स्पेसिफिक हीट किसे बोलते हैं कि एक यूनिट मास का, अगर आपको कोई भी मास हो, कोई भी सब्सटेंस हो, वाटर या लैंड मास, अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है तो जितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होगा, दैट हीट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ कि वाटर को हीट करने के लिए अपने को ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ रही है। इसका मतलब वाटर का स्पेसिफिक हीट इज मोर देन द स्पेसिफिक हीट ऑफ द लैंड मास। लेट मी राइट दैट स्पेसिफिक हीट of water, let me write it with S, is greater than specific heat of land mass. Okay, let me use the different symbols. Specific heat of water is greater than specific heat of land mass. मतलब इसका कि वाटर की हीटिंग स्लो होगी कंपेयर टू लैंड मास। अगर आपने सेम अमाउंट ऑफ हीट दिया लैंड मास को भी वाटर को भी, तो लैंड मास हीट हो चुका होगा ज्यादा कंपेयर टू दिस वाटर। सो इट मीन्स दैट हीटिंग एंड कूलिंग, जैसे ही हीटिंग होगी वैसे ही कूलिंग भी होगी, सेम स्पेसिफिक हीट के कॉन्सेप्ट से। तो हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड मास is easier compared to the water body. I hope this makes sense. So let's write this. This is a very important concept. फिर use होगा heating and cooling of land mass is easier compared to a water body. And this all concept is based on specific heat. तो अब आते हैं नाइट के टाइम पे, और इस सिनेरियो को इमेजिन करते हैं कि नाइट का टाइम है, देयर इज अ लैंड मास एंड इट इज सराउंडेड बाय सम वाटर बॉडी। तो रात का समय है, तो इस टाइम पे कूलिंग हो रही होगी सरफेस की, चाहे वो लैंड मास हो और चाहे वाटर बॉडी हो, क्योंकि रात तो दोनों जगह है। हीटिंग तो तब होगी जब सनरेज आएंगी, सनरेज है नहीं क्योंकि रात का समय है। तो ड्यूरिंग दिस नाइट टाइम लैंड मास और वाटर बॉडी दोनों की कूलिंग हो रही है, बट रेट ऑफ कूलिंग किसकी ज्यादा होगी, लैंड मास की, क्योंकि इसकी टेंडेंसी जल्दी कूल होने की है, जल्दी हीट होने की है। तो रेट ऑफ कूलिंग हायर है लैंड मास की। तो अगर ये लैंड मास जल्दी कूल होगा तो मतलब लैंड मास ज्यादा ठंडा होगा कंपेयर टू दी वाटर बॉडी, और ड्यूरिंग द कोल्ड कंडीशन जो वहां पे एयर होगी वो भी कोल्ड हो जाएगी, और जब कोल्ड एयर जहां पे एक्यूमुलेटेड होती है उसको बोलते हैं हाई प्रेशर सेल। तो हाई प्रेशर सेल वहां पे बन गया क्योंकि वहां पे एयर की डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। तो ओशियानिक रीजन में लो प्रेशर सेल होगा और इस लैंडमास पर हाई प्रेशर होगा, एंड वी नो दैट विंड ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो इस लैंडमास से ओशन की तरफ विंड ब्लो करेगी, दिस विंड इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। क्योंकि जब नेमिंग होती है विंड्स की, तो जिस पोजीशन से विंड स्टार्ट होती है उसको उसका नाम दे दिया जाता है। तो लैंड से स्टार्ट हो रही है क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो इसलिए इसको लैंड ब्रीज बोला। इसी का जस्ट उल्टा
डे टाइम में क्या होगा, देखते हैं दूसरे पेज पर। डे टाइम में ये लैंड मास, ये वाटर बॉडी, इसकी भी हीटिंग हो रही होगी, क्योंकि डे टाइम है, इसकी भी हीटिंग हो रही होगी। लेकिन हीटिंग ज्यादा किसकी हो रही होगी, लैंड मास की। क्यों, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कम है। हीटिंग कम वाटर बॉडी की, क्योंकि वाटर बॉडी की हीटिंग और कूलिंग दोनों स्लो है। तो हीटिंग अगर कम होगी तो हाई प्रेशर कहाँ पे बनेगा, कोल्डनेस जहाँ पे होगी, तो कोल्डनेस यहाँ पर है, तो यहाँ पर हाई प्रेशर, और इस लैंडमास पर लो प्रेशर। तो विंड हमेशा कहाँ से कहाँ ब्लो करती है, हाई टू लो। So this wind will start blowing from sea to the landmass. So that is why it is called sea breeze. क्योंकि sea से start हो रही है, तो that is why sea breeze. तो आपको नहीं लगता अगर ये sea breeze blow करेगा तो ये जो कोल्ड कंडीशन है यहाँ की, वो लैंड मास को भी ट्रांसफर हो जाएगी, तो यहाँ पर टेम्परेचर रिलेटिवली कम हो जाएगा। यस और नो? तो दिन के टाइम पे जो ठंडी हवा ओशन से आएगी वो लैंड मास को कंपैरेटिवली उसका टेम्परेचर कम कर देगी। सो दैट इज व्हाट आई सेड कि winds आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन इन द टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, लू, या प्राइमरी विंड्स को भी बोल सकते हैं। ट्रेड विंड्स होती हैं, वेस्टर्लीज, प्राइमरी विंड्स का डिस्कशन हम लोग डिटेल में कभी करेंगे। तो आई होप दिस factor makes sense कि winds are responsible for variation in the temperature. Okay, let's see one more factor since we have talked about winds also. So let's see another similar factor called current. We are talking about oceanic current. Oceanic currents क्या होते हैं, एक large body of water flowing in a specific direction at the surface of the ocean. तो let's say कि ये कोई बड़ा सा ओशन है और एक इतनी बड़ी बॉडी वाटर की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, दिस इज कॉल्ड करंट, ओशियनिक करंट। ओशियनिक करंट इज अ बिग टॉपिक under oceanography. We'll take up in detail. A question has been already asked from that topic in prelims as well as mains examination very recently. So we'll take up that topic in detail. But for now you should know कि एक larger water body एक particular direction में on the surface of ocean जब flow करती है तो that is called current. तो ये water body है सर, मान लेते हैं कि this water body जो ये करंट फ्लो कर रही है यहाँ पे कोई लैंड मास है, ये एक कोई लैंड मास है, दिस वन इज वाटर बॉडी, कोई ओशन है, और ये कोई कॉन्टिनेंट है, कोई लैंड मास है। तो ये जब करंट, अगर ये वार्म करंट हुई, मान लेते हैं कि ये इक्वेटोरियल रीजन में है और ये वार्म करंट है, तो आपको नहीं लगता कि ये वार्मथ जो है जो करंट की, दैट विल ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड टू दी सराउंडिंग कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे जो भी टेम्परेचर होगा उससे थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। मेक सेंस? सो currents are also responsible for variation in the temperature. या मान लीजिए यहाँ कोल्ड कंडीशंस है और अगर ये वार्म करंट है तो यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाने की वजह से टेम्परेचर माइल्ड हो जाएगा। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, अगर आपको क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ द वर्ल्ड पता है तो you'll realize कि वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द यूरोप, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप जैसे ब्रिटेन, स्पेन, यहाँ सब टेम्परेचर विंटर में भी माइल्ड रहता है, एक्सट्रीम विंटर एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। उसका रीज़न ये है
कि जो गल्फ करंट है अटलांटिक ओशन में वो वार्म करंट्स हैं, दे स्ट्राइक विद द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द यूरोप. इज दैट ओके? तो करंट्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. अगर ये कॉन्सेप्ट अभी नहीं समझ में आ रहा है तो नो प्रॉब्लम, विल टेक अप द डिस्कशन इन डिटेल, इन कंप्लीट डिटेल की करंट्स कैसे एक कॉन्टिनेंट का टेम्परेचर के वेरिएशन के लिए जिम्मेदार हैं. ठीक है, तो फॉर नाउ यू कैन, इफ यू वांट टू राइट डाउन, सो यू कैन से कि वार्म करंट्स change, warm and cold current both लिख लीजिए, warm and cold current change the temperature of surrounding landmass. एग्जाम्पल इसका नॉर्थ अटलांटिक करंट, नॉर्थ अटलांटिक करंट is responsible for mildness in the winters of Western Europe. मतलब विंटर बहुत एक्सट्रीम नहीं होगा, वो थोड़ा माइल्ड होगा. Okay, one other important factor, very important factor called continentality and maritime effect. इसका मैं पहले आपको एग्जांपल देता हूं. जैसे लीजिए, टेक द एग्जांपल ऑफ दिल्ली एंड मुंबई. सो अगर मैं इसको मैप पर दिखाऊं दिल्ली मुंबई को रफली, तो मुंबई इज समवेयर है, दिल्ली इज समवेयर है. Delhi is surrounded by the Arabian Sea, which is a water body. Sorry, Mumbai is surrounded by Arabian Sea, which is a water body. This is Arabian Sea. And Delhi is surrounded by the landmass. और आपने देखा होगा मुंबई में ना ही विंटर एक्सट्रीम है और ना ही समर एक्सट्रीम है. तो सीजन कोई भी हो, मुंबई में टेम्परेचर वेरिएशन बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है कंपेयर्ड विद दिल्ली. दिल्ली में विंटर भी एक्सट्रीम है और समर भी एक्सट्रीम है. समर के टाइम पे टेम्परेचर रीचेज अप टू 45 डिग्री, लास्ट ईयर तो 50 डिग्री तक पहुंच गया था. विंटर्स में टेम्परेचर इज वेरी लो, समटाइम्स क्लोजर टू 2 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस. बट ये कंडीशन मुंबई में नहीं मिल रही है. तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मुंबई इज क्लोजर टू वाटर बॉडी, and water body exercises its influence on the surrounding landmass. So that influence is called maritime effect. So influence or impact of a water body over the surrounding landmass is called maritime effect. तो ये मॉडरेशन करेगा. मॉडरेशन क्यों करेगा? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, ये वाटर बॉडी की हीटिंग और कूलिंग डिफिकल्ट है कंपेयर टू द लैंड मास. तो चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, ये बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होगा. और इसका इन्फ्लुएंस जो भी सराउंडिंग सिटी है, जो भी सराउंडिंग लैंड मास है, उस पर मिलेगा.
तो ये the influence exercised by this water body on the surrounding land mass is called maritime effect. Similarly, अगर आप दिल्ली पहुंचते हैं तो दिल्ली इज सराउंडेड बाय द लैंड मास। तो लैंड मास की हीटिंग भी बहुत होती है, कूलिंग भी बहुत होती है। सो इसका जो ये सराउंडिंग लैंड मास है, इसका जो इम्पैक्ट होगा वो तो एक्सट्रीम होगा, क्योंकि सराउंडिंग लैंड मास भी खूब हीट हो गया होगा गर्मी में और कूल भी खूब हो गया होगा ठंडी में। तो दिल्ली में भी वो हीट ट्रांसफर होगी या कोल्ड ट्रांसफर होगी ड्यूरिंग विंटर्स। तो दैट effect is called continentality. So effect of surrounding landmass over over the surrounded landmass. Surrounded landmass कौन सा है? दिल्ली। Surrounding landmass उसके in and around area, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, all those areas. Is that okay? So this is called continentality, and this concept of continentality and maritime effect is again related to specific heat. इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि क्यों हीटिंग या कूलिंग मुंबई की कम हो रही है कंपेयर टू दिल्ली, क्योंकि इट इज सराउंडेड बाय द वाटर बॉडी अरेबियन सी, एंड वाटर बॉडीज ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट they are not heated up easily, neither they are cooled down easily. Is that okay? So but anyway, I'll take up this continentality effect and maritime effect in a separate topic, और फिर वहां पे और भी चीजें इससे रिलेटेड डिस्कशन करेंगे कि जैसे सीजनल वेरिएशन कैसे होता है, विल डिस्कस दैट। एनीवे, सो फॉर नो वी आर टॉकिंग अबाउट वेरिएशन इन द टेम्परेचर। तो दिल्ली में एक्सट्रीम्स क्यों मिल रहे हैं, मुंबई में एक्सट्रीम्स क्यों नहीं मिल रहे हैं, दिस कुड बी एक्सप्लेन्ड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंटैलिटी एंड मैरीटाइम इफेक्ट। नॉट ओनली दिल्ली सर, अगर आप चेन्नई को देखिए, सॉरी और नीचे थोड़ा सा, तो चेन्नई will also have moderate temperature, चाहे वो विंटर हो और चाहे समर हो। क्यों? फिर से वही मैरीटाइम इफेक्ट। Is that okay? So these are the factors which are responsible for variation in the temperature across the globe. Now let's see the variation, let's see the distribution, कि वो वेरिएशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर के लिए अब हम पूरे ग्लोब पे तो हम लोग एक एक प्लेस को स्टडी नहीं कर सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, तो ऐसे पढ़ना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए थोड़ा सा इसका ब्रॉडर कैटेगराइजेशन करते हैं फॉर द कन्वीनियंस ऑफ स्टडी। तो जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है, पहले तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में, और मैं बस वो लाइन लिख देता हूं कि विद इंक्रीजिंग हाइट टेम्परेचर डिक्लाइंस। अभी हमने इसमें भी फैक्टर्स में भी बात किया था कि जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे अर्थ सरफेस से टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो दैट इज द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जितना ऊपर आप जाएंगे उतना टेम्परेचर कम हो जाएगा। और मैंने बोला था कल भी कि फॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पसेस ट्रोपोस्फेयर विल कंसिडर एज द एटमॉस्फेयर, क्योंकि मेजर जो अपने को एटमॉस्फेयर दिखता है दैट इज इन द ट्रोपोस्फेयर इटसेल्फ। एनीवे, वो डिस्कशन मैंने डिटेल में किया हुआ है, उसके लिए आपको पुरानी वीडियो चेक करनी होगी। नाउ लेट्स कम टू दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर का मतलब है कि व्हेन यू मूव हॉरिजॉन्टली ओवर द ग्लोब,
ओवर द अर्थ। जब आप लैटिट्यूड्स के क्रॉस मूवमेंट करते हैं तो टेम्परेचर में वेरिएशन है। एंड जैसे मैंने अभी बोला था कि इक्वेटोरियल रीजन में टेम्परेचर ज्यादा, पोलर रीजन में कम। तो ये वेरिएशन को कैसे डिपिक्ट किया जाता है ग्लोब पर, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड आइसोथर्म। So we use isothermal lines in order to depict the horizontal distribution of temperature across the globe. So what is isotherm? So isotherms are the imaginary lines. Obviously, ये lines reality में अर्थ पे ड्रॉन नहीं है, ये हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए ड्रॉ कर रखा है ग्लोब पर। These are the imaginary lines drawn over globe or map depicting the horizontal distribution of temperature by joining the places having same temperature. तो मतलब all those places जहां पे हमें एक टेम्परेचर मिलेगा, लेट्स से 10 डिग्री मिलता है, तो उन सारे प्लेसेस को हम लोग जोड़ देंगे जो एक लाइन बन के आएगी, दैट इज कॉल्ड आइसोथर्म ऑफ 10 डिग्री। मैं ड्रॉ करके दिखा दूंगा आपको। तो लेट्स से मैं ये ग्लोब ले लेता हूं, मैं उन सब प्लेसेस को मार्क कर रहा हूं जहां पे 10 डिग्री मुझे मिल रहा है। तो ये 10 डिग्री जो मिला, तो जब मैंने इस लाइन इन सारे पॉइंट्स को जोड़ा तो दिस इज कॉल्ड 10 डिग्री आइसोथर्म। दिस इज कॉल्ड 10 डिग्री आइसोथर्म। इज दैट ओके? तो नाउ लेट्स सी इन डिटेल कि हाउ द आइसोथर्मल लाइंस आर बीइंग ड्रॉन over the globe. Let's see that. So isothermal lines across the globe. तो मान लेता हूं ये ग्लोब है और ये एक मैंने कोई लैंडमास कंसिडर कर लिया और इस लैंडमास को सराउंडिंग इट इज सराउंडेड बाय सम वाटर बॉडी। इसी लैंडमास को लेट मी टेक इट आउट। पहले मैं कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं इसको मैप पर ड्रॉ करूंगा। तो लेट्स से दिस इज सम लैंडमास, जो ये पार्ट है दिस इज सम लैंडमास, दिस इज सम लैंडमास जो मैंने बॉक्स ड्रॉ किया है। तो मान लेते हैं सर ये इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर। दिस लैंडमास इज लेट्स से सराउंडेड बाय वाटर बॉडी। तो जब भी हम आइसोथर्मल लाइंस को ड्रॉ करेंगे, we need to keep in mind two things. One, सीजन कौन सा है, और सेकंड स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट। दो कॉन्सेप्ट अगर अपने को क्लियर है तो फिर हम लोग आइसोथर्मल लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे। दिस इज योर 0 डिग्री। तो लेट्स से कि अभी जो मैं आइसोथर्मल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज फॉर जून जुलाई मंथ। तो जून जुलाई मंथ में अपने को पता है नदर्न हेमिस्फेयर में समर है और सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर है। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि जून 21 को सन वर्टिकली ओवरहेड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो नदर्न हेमिस्फेयर में बेसिकली सन प्रेजेंट है, तो इसलिए नदर्न हेमिस्फेयर की ज़्यादा हीटिंग होगी और
डेज की ड्यूरेशन 12 घंटे से ज़्यादा होगी, इसलिए यहाँ पे समर होगा, सीजन जो होगा वो समर होगा। तो लेट्स से कि मैं उन सब प्लेसेस को जून जुलाई में जहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उन सबको जोड़ना चाहता हूँ। तो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ 10 डिग्री आइसोथर्म इन नदर्न हेमिस्फेयर। तो मान लेता हूँ कि ये जो लैंडमास है ये सब प्लेसेस को जोड़ने पे 10 डिग्री आइसोथर्म कुछ ऐसा है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहेगा बट रफली स्ट्रेट लाइन होगी, रफली स्ट्रेट लाइन, नॉट एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन। लेकिन सर जैसे ही आप वाटर बॉडी में पहुंचोगे तो आपको पता है स्पेसिफिक हीट वाटर की डिफरेंट है। तो हीटिंग और कूलिंग वाटर की डिफरेंट तरीके से होती है कंपेयर टू द लैंड मास। और अगर ये समर का टाइम है तो हीटिंग लैंड मास की ज्यादा होगी या वाटर की? तो सर लैंड मास जल्दी हीट हो जाएगा क्योंकि समर है और लैंड मास के हीट होने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो लैंड मास जब जल्दी हीट हो जाएगा तो इसका मतलब इसके बिल्कुल एडजेसेंट में जो वाटर बॉडी होगी उसका टेम्परेचर 10 तो नहीं होगा, 10 से कम होगा क्योंकि लैंडमास की हीटिंग ज्यादा हुई है। तो टेम्परेचर यहां पर 10 नहीं होगा, इस पॉइंट पे इट कैन नॉट बी 10। अपने को 10 डिग्री चाहिए, 10 डिग्री किधर होगा? या तो इक्वेटर की तरफ या तो पोल की तरफ। पोल की तरफ जैसे जैसे आप जाते हो आपको पता है टेम्परेचर घटता है, अभी हमने डिस्कस किया। तो इट मीन्स आई नीड टू कम टूवर्ड्स द इक्वेटर। So when I draw this isotherm in summer in northern hemisphere, and as I move from landmass towards in the ocean, the isothermal line bend towards the equator. एक बार फिर से, लैंड मास की हीटिंग ज्यादा हुई क्योंकि समर है, हीटिंग ओशन की भी हो रही बट ओशन की हीटिंग रिलेटिवली कम है। तो 10 डिग्री जो टेम्परेचर लैंडमास में मिलेगा उसके जस्ट सामने आपको ओशन में 10 डिग्री नहीं मिलेगा, थोड़ा सा कम मिलेगा क्योंकि उसकी हीटिंग कम हुई है। तो वहां पे 8 डिग्री होगा, 9 डिग्री होगा, बस 10 से कम होगा। अपने को चाहिए 10 डिग्री आइसोथर्म, क्योंकि हम लोग 10 डिग्री को ड्रॉ कर रहे हैं तो अपने को थोड़ा सा क्लोजर टू इक्वेटर आना पड़ेगा। यस, सो लेट्स सी ड्यूरिंग द सेम टाइम what is happening in the southern hemisphere. सर जून जुलाई में सदर्न हेमिस्फेयर में विल हैव विंटर्स, ऑलरेडी लिखा हूं, सदर्न में विंटर होगा। विंटर होने का मतलब है सर कि लैंडमास की कूलिंग तेज हो रही होगी कंपेयर टू दी वाटर बॉडी, क्योंकि विंटर में टेंडेंसी कूल होने की होगी क्योंकि नाइट्स बहुत बड़ी हैं, विंटर में नाइट्स बड़ी होती हैं तो कूलिंग खूब हो रही होगी। तो कूलिंग की टेंडेंसी होगी लैंड मास की ज्यादा कंपेयर टू दी वाटर बॉडी। तो लेट्स से यहां पर भी मैं 10 डिग्री आइसोथर्म को ड्रॉ कर रहा हूं। तो अगर यहाँ पे 10 डिग्री है तो इसके एडजेसेंट में वाटर का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होगा, 11 12 12 15 जो भी, बट 10 डिग्री से ज्यादा। क्यों? क्योंकि लैंडमास ज्यादा कूल हुआ है। मेरे को चाहिए सर 10 डिग्री सेल्सियस, आई नीड 10 डिग्री आइसोथर्मल लाइन। तो अगर यहाँ पर 12 है लेट्स से, अगर मैं टूवर्ड्स इक्वेटर जाऊंगा तो डोंट यू थिंक टेम्परेचर और ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इक्वेटर के पास जाने पर टेम्परेचर बढ़ेगा। तो आई हैव टू मूव टूवर्ड्स द पोलर रीजन। तो कैन आई से इन जून जुलाई इन जून जुलाई मंथ ड्यूरिंग समर in northern hemisphere and winter in southern hemisphere, while moving from landmass to the ocean, the isothermal line bend towards the equator in the northern hemisphere
and moves away from the equator in the southern hemisphere. हो रहा है वही चीज? Yes or no? Make sense? So, similarly, you can draw the isothermal line in January month. So, उसको बोलते हैं January isotherm. सेम कॉन्सेप्ट, बस इस बार क्या होगा? लेट्स से दिस इज इक्वेटर 0 डिग्री. जनवरी आइसोथर्म में विंटर कहाँ होगा? नदर्न हेमिस्फीयर में. समर कहाँ होगा सर? सदर्न हेमिस्फीयर में. तो विंटर है तो कूलिंग यहां पर ज्यादा हुई होगी. लेट्स से मैं फिर से 10 डिग्री आइसोथर्म ड्रॉ कर रहा हूं. आप कोई भी 15 डिग्री आइसोथर्म ले सकते हैं, 25 ले सकते हैं. तो 10 डिग्री आइसोथर्म इफ आई एम ड्राइंग, अपने को पता है कि नदर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास ज्यादा कूल हुआ है क्योंकि यहाँ पे विंटर है. तो वाटर बॉडी इसके एडजस्टेंट में रिलेटिवली गर्म होगी. अपने को टेम्परेचर कम चाहिए तो विल मूव टुवर्ड्स द पोल ऐसे. तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द पोल इन द नदर्न हेमिस्फीयर. सदर्न हेमिस्फीयर में चलते हैं. फिर से मैं 10 डिग्री लेता हूँ. यहाँ पर भी सदर्न हेमिस्फीयर में समर है, मतलब लैंड मास हीटेड अप है कंपेयर टू दी वाटर बॉडी. तो अगर यहाँ 10 डिग्री है तो लैंड मास ज्यादा हीटेड अप है, मतलब ये कूलर है. तो यहाँ पे 8 डिग्री होगा या 9 डिग्री होगा. अपने को चाहिए 10 डिग्री. तो सर मुझे इक्वेटर के पास जाना पड़ेगा क्योंकि टेम्परेचर तो भी बढ़ेगा वंस यू मूव क्लोजर टू द इक्वेटर. So accordingly, this line could also be written कि during January isotherm, the isothermal lines in the northern hemisphere moves towards the polar region, towards the poles in northern hemisphere, and in southern hemisphere during January month, the isothermal line move towards the equator. So I hope this is making sense. So this is how we draw the isothermal lines. इसी को अगर मैं वर्ड मैप पे ड्रॉ करना चाहूँ तो लेट्स ड्रॉ दिस वर्ड मैप. दिस इज योर नॉर्थ अमेरिका, दिस वन इज साउथ अमेरिका. ये मैं इक्वेटर ले लिया. दिस इज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. दिस पार्ट इज अरेबियन पेनिनसुला, ईरान, देन इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया. Then this part is Malaysia and all, starting with China, Russia. This is Jutland Peninsula, Baltic Sea, Germany, Spain, Portugal and all, Mediterranean Sea. This is roughly the world map. Let's draw Australia as well. Australia ने क्या बुरा किया? तो ये सब वाटर बॉडी. नो इट डिपेंड्स कि आप जनवरी आइसोथर्म ड्रॉ कर रहे हैं या जुलाई आइसोथर्म ड्रॉ कर रहे हैं. तो जो भी आपकी मर्जी है, ये लैंड मास हो जाएगा, ये वाटर बॉडी हो जाएगी. लेट्स से कि हम लोग जनवरी आइसोथर्म को ड्रॉ कर रहे हैं वर्ड मैप पे एंड वी आर ड्रॉइंग लेट्स से 15 डिग्री आइसोथर्म. तो 15 डिग्री टेम्परेचर जहाँ जहाँ मिलेगा वो सारे पॉइंट्स को जोड़ना है. तो मैं रफली मान लेता हूँ कि यहाँ पे अपने को 15 डिग्री मिल रहा है. लैंड पे कोई मेजर वेरिएशन होगा नहीं, इसलिए सम वॉट में स्ट्रेट लाइन ले रहा हूँ, बट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली दी स्ट्रेट लाइन. थोड़ा वेरिएशन रहेगा लोकल फैक्टर्स की वजह से. जैसे ही आप ओशन बॉडी में जाएंगे तो टेम्परेचर कंट्रास्ट होगा. टेम्परेचर कंट्रास्ट क्यों होगा? क्योंकि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर बॉडी इज डिफरेंट फ्रॉम दी स्पेसिफिक हीट ऑफ लैंड मास. अगर ये 15 डिग्री है
और ये जनवरी आइसोथर्म है, तो इतना मतलब यहाँ पर विंटर है नदर्न हेमिस्फीयर में, तो इस लैंड मास की कूलिंग ज़्यादा हुई होगी। लैंड मास की कूलिंग हुई है तो मतलब इसके एडजेसेंट जो वाटर है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ये मान लेता हूँ 16 डिग्री। मेरे को चाहिए 15 डिग्री, तो अगर मैं इक्वेटर की तरफ आऊँगा तो टेम्परेचर और बढ़ जाएगा, तो आई हैव टू मूव टुवर्ड्स दी पोल रीजन। तो ये समहाउ ऐसा हो जाएगा अकॉर्डिंगली, फिर यहाँ पर चेंज आएगा एंड इट विल गो लाइक दिस, फिर यहाँ पर फिर से ऐसे हो जाएगा। शो ड्रॉ दिस, आप इसका कॉन्सेप्ट लगा लीजिएगा, यू विल फाइंड दी सेम लाइन। सिमिलरली लेट्स से 15 डिग्री आइसोथर्म मैं यहाँ भी ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे समर है तो ये 15 डिग्री, इसकी हीटिंग ज़्यादा हुई है तो यहाँ पे टेम्परेचर लेस से 14 होगा, क्योंकि कम हीटिंग हुई है, क्योंकि समर है, यहाँ पर लैंड मास ज़्यादा हीटेड अप है। मेरे को 15 डिग्री चाहिए तो मुझे फिर से जाना पड़ेगा इक्वेटर की तरफ, मैं ऐसे जाऊँगा, फिर यहाँ पर ऐसे चेंज आएगा, ये लैंड मास आया, फिर ये वाटर बॉडी आई, फिर अकॉर्डिंगली ऐसे दिस वुड बी आर 15 डिग्री आइसोथर्म। So this was about the horizontal distribution of temperature across the earth on the globe or on the map. Let's see the question now, the question that has been asked. So this is a question of 2024. This question has actually one more concept from oceanography, but let's see this question. Which of the following is or are correct inference from the isothermal maps in the month of January? तो इट इज टेलिंग यू कि किस मंथ में आइसोथर्मल लाइंस ड्रॉ हो रही, जनवरी मंथ में, मतलब नदर्न हेमिस्फेयर इज विंटर एंड सदर्न हेमिस्फेयर इज समर, यही मतलब हुआ। द आइसोथर्म्स डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशन, देख लेते हैं। विंटर का टाइम पीरियड ये, द आइसोथर्म्स डेविएट टुवर्ड्स द नॉर्थ, ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, so this seems correct. And south over the continent, बिल्कुल ट्रू। Over the ocean it is towards the north, and in the this is southern, this is south side, yes. January isotherm, same isotherm it is talking about. So don't you think this statement is right? So statement number 1 is right. The presence of cold ocean currents, Gulf Stream, North Atlantic Drift make the North Atlantic Ocean colder. So first thing, it is making a factual mistake कि these streams, these currents are not the cold currents, they are the warm ocean currents. मैं अभी बस कॉन्सेप्ट आपको बहुत ब्रीफली आइडिया दे देता हूँ। वार्म ओशन करेंट्स होते हैं द करेंट्स विच मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। जब भी इक्वेटर से पोलवर्ड मूवमेंट होगा तो वो वार्म करंट होगी, और इसी का जस्ट उल्टा, इफ मूवमेंट इज फ्रॉम पोल टुवर्ड्स इक्वेटर तो दैट इज कॉल्ड कोल्ड करंट, क्योंकि पोल पर जो पानी होगा वो रिलेटिवली ठंडा होगा, तो जब वो इक्वेटर की तरफ आएगा तो वो पानी इक्वेटर वाले क्षेत्र में ठंडा अपीयर होगा, ठीक है। तो इसलिए उसको बोलते हैं कोल्ड करंट। और जब इक्वेटर से पोल की तरफ जाएगा तो इक्वेटर पे जो वाटर अवेलेबल है वो ज़्यादा वार्मर है कंपेयर टू दी वाटर प्रेजेंट इन दी पोलर रीजन। तो जब ये ऊपर जाएगा, पोल की तरफ जाएगा, तो दिस वाटर विच इज अ वार्मर वाटर will appear to be warmer compared to the surrounding water in the polar region or mid latitude region. Make sense? So whenever there is movement of current from
इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, दैट इज कॉल्ड वार्म करंट। जो ये गल्फ करंट और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की बात कर रहा है, these currents are moving from the equator towards the pole. So that is why it is factually incorrect. So this statement goes incorrect. Answer to this question is A for Ahmedabad. A answer. This is the right answer. Okay. So this was about the temperature distribution on the Earth's surface. There are few more topics associated with the temperature, like a concept called temperature inversion. There is another concept called temperature anomaly. So if you have any doubt with respect to those topics as well, let me know in the comment section. I'll try and cover those topics as well. So for now, thank you so much for being with me. Have a great time. See you soon.